एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਪਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਪਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਪਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕਾਮ ਤੈਨ ਬਸ ਜਾਗੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕਾਮ ਤੈਨ ਬਸ ਜਾਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ। ਨਵਨੇਦ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ। ਨਵਨੇਦ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਨਵਨੇਦ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ।
ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਬਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਬਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही राम नाम सर नाही अवर सब त्याग बचन रचना हर 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 नाम जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना हर 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 नाम जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना सहज समाध उपाद रहत फुन बड़ा पाग लिव लागी सहज समाध उपाद रहत फुन बड़ा पाग लिव लागी कह रविदास परगास हृदय तर जन्म मरण पै भागी कह रविदास परगास हृदय तर जन्म मरण पै भागी जन्म मरण पै भागी अवर सब त्याग बचन रचना हर 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 नाम अवर सब त्याग बचन रचना हर 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 नाम जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना सुख सागर सुर तर चिंता मन काम तेन बस जाके
बस जागे। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनीत कर तल ताके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनीत कर तल ताके। नवनीत कर तल ताके। अवर सब त्याग बचन रचना, हर 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 नाम जपै रसना। अवर सब त्याग बचन रचना, हर 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 नाम जपै रसना। अवर सब त्याग बचन रचना, अवर सब त्याग बचन रचना। अवर सब त्याग बचन रचना। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभ अपने जन कीनी दात। अपनी जन कीनी दात। प्रभ अपने जन कीनी दात। अपनी जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझाते हैं कम बोलना क्यों जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्यादा बोलने से आदमी बोलता कब है, मन सोचता है, ज़बान उसके अक्षर बनाती है, ज़बान उसे बाहर निकाल देती है। अक्षर मन में ही तैयार हो जाती है एक्चुअली, फिर ज़बान उसे बाहर निकालती है। बारिक में मूर्ख कहा जाता है ना, बहुत लोगों को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख का भाव क्या है? जो मुंह रख, जो मुंह को आगे रखता है, दिमाग को पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग ज्यादा बोलते हैं गुरबाणी में उसे महामूर्ख कहा है, आगे शब्द आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूर्ख जो मुंह को आगे रखता है, दिमाग को पीछे, बोलता पहले है, सोचता बाद में है। जबकि प्रकृति ने हमें कैसे बनाया, पहले हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें मूर्खों की गिनती में रखा गया है, कि जो ज्यादा बोलते हैं वो पहले बोल देते हैं, सोचते बाद में। इसलिए कई बार नहीं, बहुत बार फीका बोल देते हैं, फीका कड़वे बोल, जिससे किसी का हृदय दुख जाता है। और हृदय में हर एक के कौन है, चाहे प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, हृदय में वो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों के हृदय में प्रकट हो गया है, हमारे हृदय में प्रकट नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में कचरा भरा पड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझाते हैं, एक फिका ना गालाए, एक फिका ना गालाए, सबना में सच्चा तनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कड़वे बोल नहीं बोलते हैं, भाव बहुत कम बोलते हैं, वो धनी है,
गुणों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं। भगत फरीद जी का कैरेक्टर देखेंगे ना साथ संगत जी, विशेष तौर पर भगत फरीद जी के बारे में बात और जगह पे लिखी हुई है किताबों में कि बहुत ही मीठा बोलते, बहुत ही मीठा, मतलब हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी के विनम्रता वाले बड़े प्रमाण हैं, कितने ही आप सुनते ही हो। जेतु अकल लतीफ काले लिखना लेख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने भी विनम्रता के प्रमाण है भगत फरीद जी की हद से ज्यादा है, क्योंकि इतना मीठा बोलते थे। बार बार इसके बारे में ये लिखा आता है कि बहुत मीठा बोलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक फिक्का ना गालाए, पहला विशेष गुण कड़वा ना बोले, वो वही बोल सकता है जो कम बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना गालाए, ह्याऊ ना कही ठाए मानक सब अमोल वे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ह्याऊ ना कही ठाए, किसी का दिल मत दुखा। मानक सब अमोल में, हर इंसान के अंदर एक सच्चा मोती है उस प्रभु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कड़वे बोल बोलेगा, जिसका हृदय तो दुखा रहा है, उसके हृदय में जो बैठा है उसे भी दुख पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सब जानते हैं कि क्या करता है फीका बोल। ये घटना दास ने पहले भी ली है, पर यहाँ पर बिल्कुल सूट करती है और समझ में आता है कि कड़वे बोल क्या कर देते हैं। ज्ञान मिलता है। इस घटना को फिर से एक बार श्रवण करते हैं, गुरु मेहर करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान लगा है। चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। प्रकरण को याद रखना साथ साथ में कि जबान के चुप करा लेने से मन चुप नहीं हो जाता, और चुप कराना है मन को। अगर मन चुप नहीं हुआ तो कड़वे बोल बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, संगत भी बैठी है। एक मदारी आ गया रिच को लेकर। संगत देखी बहुत सारी, कहने का पाचा मैं अपने रिच का तमाशा दिखा दूं यहाँ पे, मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। संगत इतनी है खुश हो जाएगी और मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमिशन दे दी, कहा ठीक है दिखा दो खेल रिच का। वो मदारी रिच से कह रहे नाच, अलग अलग करतब दिखा रहा है और बार बार ये बात कह रहा है कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ इशारा करके कह रहा है कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, बड़ा इनाम देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो रिच तमाशा करके दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के करतब। संगत हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है। पीछे खड़ा है भाई कीर्तिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चौर बरदार, चौर कर रहा है, वो भी हंस रहा है जोर जोर से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए और भाई कीर्तिया से कहने लगे, भाई कीर्तिया तुझे पता है जिस रिच को देखकर तू हंस रहा है वो कौन है? उसने हाथ जोड़ दिया, पातशाह मैं क्या जानूं ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी ध्यान से सुनना इस घटना को। ये घटना बहुत ही कीमती है, इसके कई पहलू हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद भी जो अपना जीवन नहीं संभालते, जो अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते, यही हाल होना है हमारा भी अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता किसकी अवस्था क्या है संगत में। कई बार हम सोचते हैं कि ये आदमी गलत है, हमें नहीं पता होता ना उसके अंदर क्या है, वो कितनी अवस्था है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर, कितना नाम जपता है। ये घटना सिखाती है कि डर के रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर का भाव यहाँ पर अदब से होता है, अदब से रहना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता शोभा राम है, तो उसने चौर से रख दिया।
हाथ जोड़कर आगे आके खड़ा हो गया। कहने लगा, सारी संगत भी चुप कर गई, हैरान हो गई। वो मदारी भी रुक गया, रिछ भी रुक गया। भाई कीर्ते कहते, पातशाह मेरे पिता भाई शोभाराम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के दिन रात सेवा की, उनके साथ रहे हैं। वो इतनी सेवा करने के बाद, सारा जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करने के बाद भी अगर 84 भोगनी है, रिच की जो नहीं पानी है, तो फिर मैं सेवा क्यों करूं और कोई भी सेवा क्यों करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लाभ गुरु की सेवा करने के बाद? हमें जमदूतों का डर रहे, हमें 84 भुगतने का डर रहे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तेरी बात बिल्कुल सही है। सेवा करने के बाद तो सेवा का फल मिलता है, ओहदे मिलते हैं दरगाह में, और तेरे पिता फिर रिच क्यों बने, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कारण है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुनाई ये घटना अपने मुखार बिन से। कहने लगे, तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बहुत ही कड़वा था, हमेशा कड़वे बोल ही बोलने मुख से। गुरु तेग बहादुर संगत ने बहुत बार शिकायत की गुरु जी से, गुरु तेग बहादुर साहब जी से। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, पिताजी ने कई बार समझाया कि मीठा बोला कर, नहीं तो चुप कर जा, मत बोला कर, इतनी सेवा करता है, सब गवा रहा है। बहुत बार समझाया पर वो नहीं समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात दास यहाँ पर कह दे अपने एक्सपीरियंस से, महापुरुषों की संगत करो तो हर वचन मानो, नहीं मान सकते हो दूर हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहावत है, घोड़े की पिछाड़ी और महापुरुष की अघाड़ी बड़े अदब से, बड़े ध्यान से रहना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े के पीछे जाके खड़े हो जाओ, ध्यान बदला, उसने दुलत्ती मार देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हड्डी टूट जाती है उसकी लात से, उसकी आदत है, वो मारेगी। और महापुरुषों के आगे अगर बेद भी हो गई तो यहाँ पर भी लेने के देने पड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत करने का एक प्रकरण लेना था, वो एक पॉइंट उसमें है। महापुरुषों के साथ सामने रहना है तो 7 वचन बस, 8वां वचन कोई नहीं, अपनी मर्जी नहीं, 7 वचन जी। नहीं तो मत रहो, दूर से दर्शन करो, घर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता ही है, जितनी ऊंचाई पर होना, पहाड़ की चोटी पर आप पहुंच गए हो, अब उतना गिरने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब गिरे तो बचेंगे नहीं, और अगर पार कर गए तो चोटी पर पहुंच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ, गुरुओं के साथ यही होता है, उनके साथ में रहकर बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है, बड़ी जल्दी आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पर अगर वहाँ पर भूल की तो थोड़ा नहीं गिरता ना, जितनी ऊंचाई पर होता है उतनी जोर से गिरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कई बार समझाया पर तेरे पिता ना माने। एक दिन की घटना है, कीर्तन का भोग पड़ा था, संगत को कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा था, देग बांटी जा रही थी। बाहर एक गुरु का सिख, जिसकी अवस्था सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका था, इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका नाम आया है, बड़ी कमाई वाला था, जो मुंह से कहता था पूरा हो जाता था, पर लोगों को पता नहीं था, लोग उसे मस्ताना कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गड्ढे पे जा रहा था, अंदर से जुड़ा हुआ, बैलगाड़ी गड्ढा कहते, बैलगाड़ी चल रही है, वो बैलगाड़ी से उतरा, बैलगाड़ी चलते जा रही है और दौड़ कर आया कि कड़ा प्रसाद मुझे पहले दे दो, मेरी बैलगाड़ी जा रही है। तेरे पिता भाई शोभाराम जी कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं और उसे नहीं दे रहे कि चल लाइन में लग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बार बार आगे आ रहा है कि दे दो, मेरा गड्ढा चला जा रहा है, पहले दे दो, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। उसने गुरु साहब जी को माथा टेका, दर्शन किए और कड़ा प्रसाद मांग रहा है, बार बार आगे हो रहा है, वो नहीं दे रहा। उसने कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। तो तेरे पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, चढ़ के अपनी जगह पे खड़ा रहे। ऐसे अक्षर कहे और हाथ से ऐसे झटका दिया, पीछे हट। कड़ा प्रसाद उनके हाथ में जो लगा था धरती पर गिरा। इस सिख ने, कमाई वाले सिख ने, आंखों में आंसू आ गए इतने कड़वे बोल सुनकर। आदमी गुरु स्थान पर आता है मन की खुशी के लिए, शांति के लिए, गुरु की कृपा लेने के लिए, कोई कड़वा वचन बोल दे, किसी का हृदय दुख जाए, अपनी सारी कमाई गंवाने वाली बात है। इसलिए कहते थे बाबा नंद सिंह जी,
कि गुरुद्वारे में मैंने बाहर स्टिकर लगवा के रखा है गेट के ऊपर। सेवादार क्या करते थे, संगत आती है बहुत ज़्यादा, सब अंदर बैठना चाहते हैं, अंदर जगह कम है तो दूसरे हॉल में भेजते, तीसरे हॉल में, चौथे, पांचवें, जहाँ भी जगह मिले वो सब मेन हॉल में बैठना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कई संगत गालियाँ तक दे देती है, बहुत ज़्यादा, मैंने खुद सुना है। यहाँ तक कि हाथ तक उठाया संगत ने सेवादारों पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास आते हैं, क्या करें, गुस्सा आता है, बोलने का दिल करता है, मारने का दिल करता है। मैंने स्टिकर लिख के लगवा दिया, बाबा नंद सिंह जी के वचन कि संगत गाली भी दे तो तुम चुप कर जाओ, जवाब मत दो, हाथ जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाली का जवाब चुप से दो, बोलना मत। संगत में गुरु बसता है, वो जो करे ठीक है, आपकी सेवा कबूल हो जाएगी, आपकी सेवा को फल लग जाएगा अगर आप सह गए और आगे बोल दिया। जे को आख्या बोल बिगाड़ता लिखिया सिर गवारा गवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सोबा राम तेरे पिता ने ऐसे हाथ झटके का पीछे हट, कड़ा प्रसाद की देग हाथ में लगी हुई नीचे गिरी। उस सिख ने वो देग उठाई, आंखों में आंसू है, दिल को चोट लगी है, रसना से कड़ा प्रसाद लगाया और कहा रिच तो तू है। जिसे आज तक ये समझ में नहीं आया कि संगत से बात कैसे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सिख के रसना से वचन निकल गए और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, तुझे पता है बाणी क्या कहती है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मुँह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का कहा हुआ भगत बदल सकता है, पर भगत का कहा हुआ गुरु नहीं बदल सकता। एक जुड़े हुए सहज अवस्था की प्राप्ति वाले ने के मुख से ये वचन निकले थे, पूरे होने ही थे। तेरे पिता को रिच बनना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी सेवा का फल ही है कि आज ये यहाँ पर आ गया है, इसे बुला लिया है यहाँ पर इसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि सिख के वचन भी पूरे होने थे, पर हमें लाज है अपने सेवादार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 में नहीं जाने दे रहे इसे, फिर से एक मनुष्य देही मिलेगी, आज इसका उद्धार करने के लिए ही इसे बुलाया तेरे पिता को यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त कड़ा प्रसाद की देग मंगाई, शीत प्रसाद इसे खिलाया और इस ऋषि ने उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मदारी रोने लगा, भी मेरी क्या गलती थी, मेरे तो कारोबार खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादारों से कहा कि इसे जो भी जितनी भी बेटा बनती है उससे ज़्यादा इसे दे दो, और उसे वो देकर उसे भी धनवान कर दिया और रिच का भी कल्याण कर दिया। और संगत को कितना बड़ा उपदेश दे दिया साथ संगत जी, कि हम सबके लिए उपदेश है। ऐसा अक्सर सारा जीवन आपके साथ होता रहेगा कि आगे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनको ज्ञान नहीं है। ये वही लोग हैं ना बेचारे, कल इनको ज्ञान हो सकता है। बाबा कुंदन सिंह जी कहते थे, अपने से नीचे वाले को देखो या किसी अज्ञानी को देखो, उससे नफरत मत करो, पता नहीं किस दिन गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाए, तुमसे कई गुना आगे निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पर तरस करो, उससे नफरत नहीं करनी है। नफरत की तो गुरबाणी में स्थान ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। याद है ना एक घटना, राबिया मशाल लेकर दौड़ रही है, सबने पूछा क्या हो गया, कह लगी मैं कुरान शरीफ को आग लगाने जा रही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, मुसलमान धर्म की इतनी ऊंची किताब के बारे में राबिया क्या कह रही है, खुद मुसलमान है, खुद इतनी बड़ी पीर है, खुद इतना अदब करती है, क्या हो गया है इसे, पागल हो गई है। असल में वो शिक्षा देना चाहती थी, नाम ऐसा ले लिया उसने, सब खलकत इकट्ठी हो गई कि क्या करने जा रही है। कहने लगी मुझे पता चला कि इसमें लिखा है कि शैतान से नफरत करो, और मैं शैतान से भी नफरत नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था क्या है राबिया की, ये किसकी अवस्था है, कल बात निकली थी ना कि पंथ को पंथ न सुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके लिए ना कोई पंथ है, ना कोई देश है, ना कोई धर्म है, एक इंसानियत ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो शैतान से भी नफरत न कर सके, बाणी तो ये अवस्था चाहती है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग अक्सर मिलते रहेंगे। सिंपल सी बात है, महापुरुषों के वचन फिर से दास सुना दे। समझो दो सेवादारों में आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पर, दो सत्संगियों में बहस हो गई किसी बात पर, जो चुप कर जाए वो झोली भर के ले जाता है, जो झगड़े जीतने के लिए वो अपना देकर चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है। अभी देखो दो सेवादार समझो रात भर से सेवा कर रहे हैं, सुबह हो गई, अब दोनों में झगड़ा हो गया, किसी बात पे बहस हो गई। एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है। अगर दोनों सुना रहे हैं तो
कोई लेना देना नहीं, अपना सुना के बस झगड़ा करके घर चले जाओ। पर अगर एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है चुप करके, तो जो सुना रहा है अपनी पूरी रात की कमाई उसकी झोली में डाल कर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी रात की मेहनत करके वो आपकी झोली में दे के जा रहा है अपनी कमाई, तो खुश हो ना, नाराज किस बात पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या तो फिर झगड़ते रहो सारी उम्र। इसमें भी एक पॉइंट है, एक पहलू है। झगड़ा दो प्रकार का दास ने समझाया था। अगर मन भीतर फिर झगड़ा कर रहा है, मुंह नहीं बोल रहा, तो कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन को चुप कराओ, मन को समझाओ। ये ज्ञान है, ये साखियां क्या क्यों है? हमें नफरत नहीं करनी है किसी से। नफरत होगी तो मन झगड़ा करेगा। शांत मन। शुक्र है पातशाह तेरा, शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वैसे भी ना, गुरु द्वारा कहते हैं, गुरु का द्वार, गुरु के पास आए। जब यहाँ पर कोई भी घटना आपके साथ घटती है, बहुत कुछ कटता है आपका। यहाँ पर अगर झगड़ा कर रहा है कोई, पता नहीं कितने झगड़ों से बच गए आप। यहाँ पर संगत के धक्के खा रहे हो आप, पता नहीं जमदूतों के धक्कों से बच गए आप, कितने धक्कों से बच गए। और ये सच है, ये वाणी कहती है, साध संगत की भीड़ जो पाई। बहुत लोग भीड़ से डरते हैं ना, कि भीड़ में नहीं जाना। वाणी कहती है, साध संगत की भीड़ जो पाई, तो नानक हर संग मेरिया। जब तक संगत के धक्के नहीं खाएगा साध संगत में आके, तब तक प्रभु नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात तो ये है, कम बोलना, मीठा बोलना। जो वाणी समझाती है, मीठा, कड़वे बोल नहीं बोलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वही बोल सकता है जो कम बोलते हैं। कम कौन बोलता है? जो नाम जपते हैं। इसीलिए कहा है, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। प्रभु अपने कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाहे। प्रभु अपने स्यो रह समाए, प्रभु अपने सूर है समाए, प्रभु अपने स्यो रह समाए, प्रभु अपने सूर है समाए, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, ये जबान कड़वा बोल रही है, जबान चुप नहीं कर रही, ज्यादा बोल रही है, अब इसे चुप कराएं कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका इलाज क्या है? गुरु नानक पातशाह बड़ी डिटेल में समझा रहे हैं इस बात को, इस पहलू को, कि जबान कड़वा बोलती क्यों है, ज्यादा बोलती क्यों है, इसमें इतने अवगुण क्यों हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय में एक जबान ऐसी है जिसे दोनों का दर्जा हासिल है, जो ज्ञान इंद्रिया भी है, कर्म इंद्रिया भी है, ये स्वाद भी ले रही है, अंदर संदेश पहुंचा रही है, ये हो गया इसका ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया ये कर्म भी कर रही है बोल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल ये एक इंद्रिया है जो दोनों काम कर रहा है, दोनों तरफ गिना जाता है। जो गुरु नानक देव जी इसके बारे में बड़ी डिटेल में समझा रहे हैं कि ये फीकी बोलती क्यों है। श्रवण कीजिए। मन झूठ है तन झूठ है, जेहवा झूठी होए, जेहवा झूठी होए। मन झूठ है तन झूठ है, जेवा झूठी होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं अपनी वाणी में कि इस मन को मैल लगी है विकारों की, और जब मन को विकारों की मैल लगी है, जबान में से सुचमता कैसे निकलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका मन झूठा उसका शरीर भी झूठा। सुचे ए न आखिए बहन जे पिंडा तोए, सोचे से नानका जिन मन वसिया सोए। अगर मन में वो बसा है तो शरीर भी पवित्र है, अगर मन में वो नहीं बसा, मन में विकार बसे हैं, तो शरीर भी अपवित्र है। वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन झूठ है तन झूठ होए, जेवा झूठी होए। तन भी झूठा, ये जेवा भी झूठी। क्यों? विकारों की मैल चिपकी हुई है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान इंद्रिय विकारों की तरफ दौड़ रहे हैं। अब एक मटका है, मटके के आगे एक नल है, नल में से क्या निकलेगा? जो मटके में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मटके में जो भरा होगा नल में से वही निकलेगा ना। वाणी कहती है इसी प्रकार जो तेरे मन में है, जबान में से वही निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मन कड़वा है, तेरी जबान अपने आप कड़वी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे मुख झूठे झूठ बोलना, झूठ बोलना, क्यों कर सोचा होए, क्यों क्यों कर सोचा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख झूठ है, झूठ बोलना, क्यों कर सोचा होए। मुख तेरा झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि तेरा मन भी झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो अपने आप को सोचा कैसे कह सकता है? तो पूरा का पूरा ही झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी जबान झूठ बोलती है, तेरा मन भी झूठा, तेरा तन भी झूठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। असल में मुझे कहना ये चाहिए कि अगर मेरी जबान झूठ बोलती है तो मेरा मन भी झूठा, तन भी झूठा है। गुरु नानक पातशाह हमें उपदेश दे रहे हैं और हर एक को अपने मन को कहना है, अपने मन को। दो सिर पर उंगली नहीं उठानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन अब शब्द ना मांझिए,
साचे ते सच होए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में बताया कि कैसे ये जबान तेरी सुच्ची होगी, तेरा शरीर सुच्चा होगा, तेरा मन सुच्चा होगा। बिन अब शब्द न मांझिए। अब कहती है जल को, नाम का जल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन अब शब्द न मांझिए। नाम रूपी शब्द के बिना तेरा हृदय साफ नहीं हो सकता। साचे ते सुच होए। जिस दिन तेरा हृदय की मैल उतर गई, तेरी जबान कड़वा बोलना बंद कर देगी। जबान कड़वा बोल रही, इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर सुचमता नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन अब शब्द न मांझिए, साचे ते सच होए। शब्द न मांझिए। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लही ओ तोए। परिय मत पापा के संग, ओ तो पे नावे के रंग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी बार बार अलग अलग तरह से समझाती है। क्या समझाती है? नानक मन समझाई, मन समझाए। गुर के शब्द साला, गुर के शब्द साला। क्या भाव है इस पंक्ति का? नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सला। एक ही भाव है जो ये पंक्ति है। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभ अपने जन की दात, प्रभ अपने जन की दात, प्रभ अपने जन की दात। प्रभ अपने जन की दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभ अपने जन की दात, प्रभ अपने जन की दात, प्रभ अपने जन की दात। प्रभ अपने जन की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान ने हमें दो आंखें, दो कान, पर मुंह एक दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कान से भी सुना जा सकता है बंद हो तो, पर दो कान दिए हैं। आंखें दो दी है, एक आंख से भी देखा जा सकता है, पर जबान एक दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सिंपल सा संकेत है। देख ज्यादा, सुन ज्यादा, बोल कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबसे बड़ा उपदेश यहाँ पर यह है कि बिना देखे, बिना सुने किसी के बारे में कुछ मत बोल, कुछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के बारे में निर्णय मत दे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। इसे निंदा कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सबको पता है कि निंदा क्या करती है, सारा कुछ खत्म कर देती है। ये परहेज है। अगर ये परहेज नहीं है,
तो दवाई खाकर भी, नाम रूपी दवाई जो हम खा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहना चाहिए कि असर नहीं होगा, असर नाम का होता ही है, कुछ भी कर लो, पर बहुत कम रह जाता है। अब बुखार की दवाई भी कोई खाता जाए और ठंडा भी पीता जाए, गोली अपना असर करेगी, ठंडा अपना असर करेगा, बुखार चलता रहेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बिना देखे, 2 बार देखो, 2 बार सुनो, सोच समझ के बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी इस बात को समझाती है खुलकर। सुखमनी साहब जी की वाणी हम रोज पढ़ते हैं, कहते पवित्र सुनते पुनीत। बड़ी ध्यान से समझना। कहते पवित्र, सुनते पुनीत। कहने वाले को पवित्र का दर्जा दिया है और सुनने वाले को पुनीत का। पुनीत कैसे कहते हैं? 3 बार पवित्र कहा जाए तो 1 बार पुनीत बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बार पवित्र को तो 1 बार पुनीत बनता है। और यही बात गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। कहते पवित्र, सुनते पुनीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने वाले से सुनने वाले का दर्जा बहुत ऊपर है, 3 गुना ऊपर, क्योंकि सुनने के लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, कहने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी बिना सोचे भी बोल सकता है, पर सुनना है तो एकाग्रता चाहिए। अगर ध्यान कहीं और चला गया, अक्षर गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो सुना था, आवाज आई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बातों की एक बात, कम बोलो। वाणी ये कहीं नहीं कहती कि चुप करके बैठ जा। कोई वेद शास्त्र, कोई संत महापुरुष ये नहीं कहता। ये गुरु मेहर करे बख्शे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। ये वाणी कह रही है। पढ़ पढ़ के कितने संतों, कितने महापुरुषों के, कबीर जी के, सबकी वाणी दास ने बता दी। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, हर गुरु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं, उनका हृदय में लगेगा कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ। अगर बुरा लग जाए तो सच बुरा झूठे को लगता है, सच्चे को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर बुरा लग जाए तो अपने में बदलाव लाने की कोशिश करो, ज्ञान लो। चोट लगनी चाहिए। सिख कहते हैं, शिष्य कैसे कहते कैसे हैं? जो हमेशा उन्नति की तरफ बढ़े, जो ये हमेशा स्वीकार करे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, अपनी उन्नति करो मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक अगर भटके हुए थे, ये सोचकर चल रहे थे कि मौन धारण करने से प्रभु खुश हो जाएगा, मिल जाएगा, आज तक अगर भटके हुए थे, देखिए दास बार बार ये बात कर रहे, वाणी भी प्रमाणित करिए, कम बोलना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। थोड़ा बोलना, कुछ घंटों का मौन रखना बहुत जरूरी भी है शरीर के लिए। पर कोई ये सोचे कि मैं चुप कर जाऊं और परमात्मा मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। उल्टा जोनियों में भटकना पड़ेगा, परमात्मा से दूर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम बोलते हैं तो अपना ज्ञान ही रिपीट करते हैं जो हमें पता है। जब हम सुनते हैं कुछ मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने वाला पा लेता है, बोलने वाला तो वही बोल रहा है जो उसे पता है, वो कुछ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, हमें ये ज्ञान दे दे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, कितनी कृपा वाली वो जो यंग जनरेशन आज बैठी हुई है, जुड़ी हुई है कीर्तन से। भटकने से पहले उन्हें सही रास्ता मिल गया, क्योंकि भटकाने वाले बहुत हैं। बहुत बड़ी कृपा है ये जो यंग जनरेशन आज जुड़ी है, बच्चे बैठे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, ये कीर्तन सुन रहे हैं, वो कभी भटकेंगे नहीं। उन्हें पता है कि गुरु ने क्या कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी से जिन्हें अमृत वेला मिल गया है,
उनके जीवन में तो आने से पहले सारे दुख खत्म। कितना सुख भरा जीवन होगा उनका गुरु के चरणों में अमृत वेले से जुड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बच्चों को जोड़िए, अमृत वेले सोने मत दीजिए। अगर कोई स्कूल भी चालू हो गए, कई लोगों के मैसेज आते स्कूल खुल गए हैं, लेट हो रहा है, जल्दी भोग डाल दो। दास ने पहले भी कहा था, आप भेज दो ना बच्चों को स्कूल, आप चले जाओ ना बीच में से उठकर, दूसरे लोगों का क्यों काम खराब करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो, अपने आप को पीछे रख लो। आप बाद में भी यूट्यूब पर देख सकते हो जाकर, जो आपका छूट जाए। और कड़ा प्रसाद की देख लेने की बात है तो बाबा नंद सिंह जी के वचन है, 15 दिन में कम से कम एक बार कड़ा प्रसाद ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी वचन है महापुरुषों के। ये मैंने और भी कहीं पढ़े थे, किसी गुरु के भी वचन हैं गुरुओं के, कि जो कड़ा प्रसाद खाता है श्रद्धा भावना से, कि गुरु कड़ा प्रसाद किसे कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं, गुरु के आगे भोग लगता है कि गुरु नानक ने खाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अरदास में कहते हैं ना सारी संगत खड़े के 5-6 भोग लगाओ, तो उस वक्त सेवादार भोग लगाता है, कृपाण भेंट करता है कड़ा प्रसाद में कि गुरु नानक पातशाह ने चखा है। वो शीत प्रसाद हम खाते हैं, कड़ा प्रसाद गुरु का जूठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कड़ा प्रसाद खाते वक्त ये भावना तो बनाओ कि गुरु नानक ने खाया है इसे। ये वो है, जब इस भावना श्रद्धा से कोई खाता है, 15 दिन में एक बार भी खा ले। बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर उसकी मौत हो गई, नाम जपने वाला नहीं भी है, नरकों में नहीं जाएगा, फिर एक जन्म मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, नाम जप ले, फिर मनुष्य देह मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ताकत है कड़ा प्रसाद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ भावना है आपकी कड़ा प्रसाद लेके जाना है, पर संगत कीर्तन सुनने बैठी है, 10% 20% लोग उठते भी है, तो 80% तो सुन रहे हैं ना। और गुरु बुलवाता है, कुछ आ रहा है तो बोलने का मन करता है, अगर बीच में छूट गया तो छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए जो गुरु करा रहा है होने दो, अपने आप को उसमें शामिल कर लो, मन मत दुखाओ, विचलित मत हो, प्रसन्नता से सब करो। 15 दिन में एक बार भी, संडे के दिन भी आपने कड़ा प्रसाद ले लिया, गुरु की मेहर वर्तनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाकी सारे स्थानों के सेवादारों से दास बेनती करेगा कि संगत जब उठ के जाने लगे, क्योंकि कीर्तन थोड़ा लेट हो जाता है, तो लंगर प्रसाद आप बाहर बांट दिया कीजिए, भोग पहले लगा लिया कीजिए लंगर प्रसाद का। जो संगत जा रही है उसे पार्सल दे दिया, जो बिठा के जो भी करने कर लिया। पर कड़ा प्रसाद तो अनंत साहब जी के बाद ही हो गया ना, मर्यादा यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए समाप्ति करें, गुरु मेहर करे, जो कल बुलवाना हो कल बुलवा ले। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिह्वा दिन रात, 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 बोलो
जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात, 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 प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन की दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन की दात। कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन मन रहे हमारा। सुने मूड चित लाए करता
बाणी सुनते प्रीत कहते कोई सतगुर है भरपूरे वचना गुरु चरण लागे वाजे अनंत पूरे श्लोक पवन गुरु बाणी पिता दिवस रात जुदाई दाया नीला सकल ग्रंथ जगिया बुलाइया वाजे धर्म दूर नबिया को अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम पे आया वैर सत्कार कांटे उजले के दिशुकी काल उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। गुਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दूसरा जोदाई दाया खेले सरल जगत कगिया बुराइया वाच धर्म दूर कर्मिया को अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम पे आया गए मुस्तार नानक दिन उजले कहते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी सोम शुक्र मंगल शुक्र बुधवीर शुक्राना शुक्र शनि इतवार भी तेरा तेरा शुक्र करूं रोजाना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। हो सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है।
महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। चरणों में तेरे गुरु जी सर को झुकाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं 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 मैं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी
सदा जय गुरु जी की।